Okay, in this lecture we will cover continuity. First of all, a continuous function. A function is said to be continuous if it satisfies these three conditions. So what are these three conditions? First of all, the exact value should exist at that point. For example, if you want to check the continuity at this point, so exact value at this point should exist. तो पहली बात एग्जैक्ट वैल्यूज़ की होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब कोई रियल नंबर आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो, इन्फिनिटी ना हो. सो एफ ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट होना चाहिए. Second condition is that the limit exists. Limit of this function when x approaches a should exist. If limit exists, then the third condition is just the comparison of the first two. The first was the exact value and the second was the limiting value. So the third condition is says that the exact value should equal to its limiting value. And you know that how to find the limit when the limit exists. For example, if your function is a polynomial, then you do not need to find the left and right limit, because in the case of the polynomial, limit always exists and you just have to replace its value in it. And but if your function is in piecewise function, then of course in order to find the limit you need to find the limit from left side and right side, and if both are same, then you can say that limit exists, and that limit should be equal to its exact value. So in the previous example, if you remember, जो हमने ग्राफ के थ्रू किए थे या कंप्यूटेशन जब हमने किए थे लिमिट्स की, in that if you saw that sometime limit exists and sometime the exact value doesn't exist and sometime it exists, and sometime ये भी होता था कि both are different, मतलब एक दोनों exist करती हैं लेकिन different है, and sometime it happens that both exist but they are not same. तो कंटिन्यूटी में कौन सा वाला केस आएगा जिसमें दोनों एग्जिस्ट करें, मीन के लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू दोनों हों उस पॉइंट पर और वो दोनों सेम हो, दैट इज़ कंटिन्यूटी. ठीक, लेट्स सी दिस एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1. Here this function is given in pieces. It has two pieces. It says that when x is not equal to 2, so we will have to pick the first one, and if x is equal to 2, then this is 4. So this x is not equal to 2 mean x less than 2 भी इसमें आएगा और x greater than 2 भी इसमें आएगा. Mean कि for left and right limit both you will use the first function, and the second one when x is equal to, this is the exact value. Mean कि when x 2, so y क्या है इसका 4. ये तो exact value के लिए. So अब continuity चेक करनी है. हमने देखना है कि ये जो फंक्शन हमारा f of x है क्या वो इस 2 पर continuous है या नहीं है. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करे. एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पर, 2 पर. सो एफ ऑफ 2 देख रहे हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं. सो जब 2 पे तो उसने दी हुई है वैल्यू 4, इट्स गिवन. सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज अ नंबर, सो इट्स मीन कि एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड. इट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज. हाउ अबाउट द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन सेज दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एग्जिस्ट्स. अब ये लिमिट देखना है. And since here we have a same function for right side and left side, because x is not equal to 2 mean x is less than 2 or x is greater than 2. So for both you will use this function. That's why you do not need to write both left and right limits separately, because we know that since the function is same, so of course the answer from both sides should be same. So सिर्फ एक ही बार निकाल लेते हैं, उसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि हमें पता दोनों का सेम आएगा. तो ये इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है. फंक्शन यहाँ पर कौन सा चूज़ किया, फर्स्ट वाला. क्यों, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 2 मीन कि x ग्रेटर दैन 2 और लेस दैन 2 दोनों के लिए. देन आपने पहले डिनोमिनेटर को चेक किया. डिनोमिनेटर इज 0 एट 2. देन यू विल चेक द न्यूमरेटर इज आल्सो 0 एट 2. सो इट्स अ 0 over 0 form, so you need to simplify it. We make factor of the numerator, a minus b and a plus b, and this will be cancelled out with this one, and the remaining thing is a polynomial, and in polynomial you just have to replace this x with this 2. So 2 plus 2 will be 4. So 4 is a limiting value and exact value was given, which was again 4. So both are same. So now we can say that this function is continuous at x is equal to 2. Let's go to the next example. अच्छा, इस example में if you see the exact value 2 पर 3 है. ठीक, लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि फंक्शन वही है, सेम वही है पिछले एग्जांपल का, 4 है, बट दिस 4 इज़ नॉट इक्वल टू दिस 3. थर्ड में क्या करना होता है, जस्ट कंपैरिजन.
रिमेंबर फर्स्ट में आपने जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, ठीक। सेकंड में आपने लिमिटिंग वैल्यू देखनी है। थर्ड में आपने देखना है कि फर्स्ट और टू क्या दोनों सेम है या नहीं। थर्ड इज जस्ट कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टू। तो फर्स्ट में 3 था और सेकंड में 4 था, दिस आर नॉट सेम, सो लिमिटिंग वैल्यू 4 है, exact value 3 है, 4 is not equal to 3, so we can say that this function is discontinuous. Discontinuous mean not continuous at x is equal to 2 as the third example. अच्छा, इसमें आप देखो एक ही फंक्शन गिवन है, ठीक। 2 पे चेक करना है क्योंकि ये जो ए बी सी पार्ट थे इन सब का आपने 2 पे चेक करना था। तो आपने 2 पे चेक करना है क्या ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। पहले लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू, अब एग्जैक्ट वैल्यू 2 पे देखना है या नहीं। अब इसमें अलग से कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ कि 2 जब 2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एक ही फंक्शन है। मीन कि दिस फंक्शन यू हैव टू यूज़ फॉर लिमिट एंड यू हैव टू यूज़ इट फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू में क्या करते हो, जस्ट नीड टू रिप्लेस दैट वैल्यू इन योर फंक्शन। लेकिन एट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 2 यहाँ पे पुट कर दूँगी तो 2 माइनस 2 एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, लिमिटिंग के लिए नहीं अभी, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो इट मीन्स कि एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी एफ ऑफ टी की वैल्यू अनडिफाइंड है। जब फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया, you do not need to check the second condition or third condition because in order to check continuity at some point, first your first condition should satisfy, then you will go to the second condition and then you will go to the third condition. If first condition fails, then you will stop over there and you can say that this function is discontinuous, okay. And if for example the first condition satisfies, then you will go to this second condition. If second condition fails, mean if the limiting value does not exist, then you do not need to check the third condition. So तरतीब से है। Let's do another example. यहाँ पर आप पीसीज में है फंक्शन, ठीक। आपने देखना है कि दिस फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 1 पर के नहीं। पहले हम देख लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू विच फंक्शन यू विल चूज, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन। First one, because the equality is here with the first one. So in order to find the exact value f(1), you need to replace 1 in your first function. This will be 7 minus 2, which is 5. So 5 is a number, is a real number, so it's defined. So exact value is defined. And for the limiting value, you will see you have to find the, since your function is in pieces, so you have to find the limit from left side and then you have to find the limit from the right side. From left side, for the left side you will choose this function because less sign is here, you will choose 7x minus 2, and for right side you will choose this second function 5x square. You will just put the value over here since it's a polynomial, and how to find the limit of a polynomial, you will just replace the value x in your polynomial. So from left side you will get 5, from right side you will get 5, since the right and left both are same. So since these both are same, so the limit is equal to that number 5. So this is the limiting value. And what was your exact value? Exact value भी 5 था, दोनों same है, so the third condition satisfies. Let's see the next example, this one. In this example again the same question, 1 पे आपने find करना है, so you have to find the limiting value at 1. So 1 पे पहले exact value देख लेते हैं, is 3 because you have to use this one, and the limiting value at 1. So for the limiting values you will choose the first function because for greater and for less both is the first function, and you do not need to find the left and right separately because we know that is the same function, so answer will be same. यहाँ पे अलग अलग निकाला हुआ है, लेकिन ना भी निकालो तो ठीक है, आप एक ही बार just limit f of x approaches to 1 भी लिख लो, it's enough. So right side के लिए भी same function है, left side के लिए भी the same function. अब x को denominator में put करना है, तो 1 minus 1 is 0, denominator is 0 but numerator is not 0, 3 over 0, something over 0 is infinity, so that is plus infinity. But how you will choose that is a plus infinity or negative infinity? Since you are approaching to 1 from its right side,
so you have to take a number which is greater than 1. If you pick a number greater than 1, so if you make a sign chart, 1 is here, zeros of the denominator is x is equal to 1, और 1 के राइट साइड पे कोई नंबर अगर आप लो 2 को इसमें पुट करो, इस यहाँ पर 2 - 1 इज़ 1, तो 3/2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. लेफ्ट साइड पे कोई नंबर ले लो, जिस तरह 0 ले लो तो वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए राइट साइड से वो प्लस इन्फिनिटी है और लेफ्ट साइड से वो नेगेटिव इन्फिनिटी, इसलिए अलग अलग निकाला हुआ है. लेकिन एनी वे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इन्फिनिटी है. सो एग्जैक्ट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं है. क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, so you will not check the third condition. You will say that just limit does not exist. जब आप कहोगे just limit exist नहीं करती तो इसका मतलब second condition fail हो गई, so it's mean the function is not continuous. Okay, let's see the next example. Okay, here your function is given, is a piecewise function and you have to find the वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के. यहाँ पे देखो दिस इज अननोन, यहाँ पे कोई नंबर है जो हमें नहीं पता, ये आपने फाइंड करना है के की वैल्यू इफ़ पॉसिबल, अगर वो निकल सकता है. दैट इट विल मेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर. कह रहा है कि ऐसा आपने एक्स फाइंड करना है जो इस फंक्शन को हर जगह कॉन्टीन्यूस बना दे. अगर आप देखो कि ये फंक्शन जो पहला फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल वैसे हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं. द सेकेंड फंक्शन इज़ अ रैशनल फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं, सिर्फ जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होता वहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता. डिनोमिनेटर 0 पे 0 है तो 0 ऑलरेडी इसके डोमेन में नहीं है क्योंकि 0 लेस दैन एक्स है, इक्वल टू एक्स नहीं है. तो इसका मतलब है हर जगह तो कॉन्टीन्यूस है, सिर्फ जहाँ पे ये ब्रेक हुआ हुआ सिर्फ अब हमने सिर्फ वहाँ चेक करना है, वहाँ मसला हो सकता है जहाँ पे ये ब्रेक हुआ हुआ, कहाँ पे 3 पे हुआ हुआ, मतलब लेस दैन 3 के लिए कोई और फंक्शन है, ग्रेटर दैन 3 के लिए कोई और फंक्शन है. सो यू नीड टू चेक द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3. इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 दैन ऑफ कोर्स दिस विल बी कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर. तो 3 पे चेक करना है. अच्छा, और चेक नहीं करना, उसने कहा हुआ है कि ये फंक्शन अज्यूम कर लो कि दिस इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर. आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है. उसने कहा हुआ है कि आपने के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस फंक्शन को हर जगह कॉन्टीन्यूस बना दे. ठीक, तो इसका मतलब है कि हमने सपोज करना है कि हर जगह कॉन्टीन्यूस है, तो 3 पर भी फिर भी कॉन्टीन्यूस है. अब जब 3 पर कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब है इट सेटिस्फाइज the 3 condition of the continuity. So you have to choose one of these or maybe 2 of these conditions in order to find the value of k. ये हम देखते हैं भी हमने कैसे फाइंड करना है. सो अज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हर जगह कॉन्टीन्यूस है. अगर हर जगह कॉन्टीन्यूस है फिर 3 पर भी कॉन्टीन्यूस होगा. अगर ये 3 पर कॉन्टीन्यूस है सो बाय द कंडीशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी 3 पर एग्जिस्ट करती है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू. तो हम सेकंड कंडीशन को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन क्या थी? आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो, बस आपने इस तरह यूज़ करनी है कि आपका के फाइंड हो जाए. आप फर्स्ट कंडीशन सिर्फ यूज़ करोगे तो हो सकता है के फाइंड ना हो. तो अब आप देख लो किसी भी कंडीशन को आप यूज़ कर लो. सेकंड कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं. सपोज कर लिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. इफ़ अज्यूम दैट द लिमिट एग्जिस्ट्स, सो इट मीन्स कि लिमिट फ्रॉम राइट साइड इक्वल टू लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड. रिमेंबर, यू डू नॉट नीड टू प्रूव that right and left limit are same. In that case you have to assume that the limit are same, because you assume that the limit exists. लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब देखो हमने ये प्रूफ नहीं किया, हमने खुद से एज्यूम कर लिया है कि राइट और लेफ्ट लिमिट सेम है. अब यहाँ पे हमने राइट लिमिट की वैल्यू डाल देनी है, यहाँ पे लेफ्ट लिमिट की, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है. राइट साइड से कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट वाला. राइट साइड के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन, लेफ्ट साइड के लिए ये वाला फंक्शन. इसमें पुट किया 3 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 9 1, ये वाली साइड 1 हो गई. यहाँ पर पुट किया तो k ओवर 9, ये साइड 1, अदर साइड इज k ओवर 9, यहाँ से k आ गया 9. बस आपने सेकंड कंडीशन यूज़ की तो आपका k फाइंड हो गया. तो जस्ट दिस इज़ योर आंसर. इज इट क्लियर और नॉट? लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, मे बी एक और एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो जाए. दिस इज अनदर फंक्शन. Here again you have to find the value of k such that this function is continuous everywhere. तो उसी तरह assume that this function is continuous everywhere. If it is continuous everywhere, so of course it will be continuous at x is equal to 2. ये 2 कहाँ से आया? मैंने यहाँ से लिया क्योंकि मैं चाह रही हूँ यहाँ पे लिमिट में अप्लाई करूँ, लिमिट की कंडीशन. अब since it's continuous at x is equal to 2, so it means the limit भी एग्जिस्ट करती है, फिर इसका मतलब है 2 पर.
लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि राइट और लेफ़्ट लिमिट दोनों की सेम है। फिर ये हमने अज्यूम किया हुआ है, प्रूफ नहीं करना, अज्यूम किया हुआ है, मतलब इसको ज़बरदस्ती हमने इक्वल रखा हुआ है। उसके बाद जब हमने इसको इक्वल रखा हुआ तो बस हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। राइट साइड के लिए सेकंड वाला फंक्शन है बिकॉज एक्स ग्रेटर दैन 2, फॉर लेस दैन यू हैव द फर्स्ट फंक्शन बिकॉज इट्स लेस दैन 2. You will just replace the values here and then you will apply the limit. This is a polynomial, this is a polynomial, you just replace this value 2 here, this value 2 here. The left hand side will be 4 plus k and right hand side will be 4k. After simplification your k will be 4 by 3. So that is your answer. Okay. Similarly this example, यहाँ पर भी आप उसी तरह आपने 3 पर assume कर लिया कि continuous है, तो अगर कॉन्टीन्यूस है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थर्ड कंडीशन यूज़ किया, सेकंड क्यों नहीं किया? सेकंड से मेरा कांस्टेंट ए फाइंड नहीं होना था, ए इधर है, ठीक। अब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट जो फंक्शन है वो दोनों ही इधर हैं। अगर मैं लिमिट वाला यहाँ पे यूज़ करूँ, मीन कि मैं अगर अस्यूम कर लूँ कि दिस एफ ऑफ एक्स जो है लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेस 3 एग्जिस्ट करती है, सो आई हैव टू यूज़ द सेम फंक्शन फॉर राइट हैंड साइड, आई हैव टू यूज़ द सेम फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड साइड, और वो दोनों को मैंने इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ए तो इसमें है ही नहीं, ए नहीं फाइंड होगा, तो इसका मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है सेकंड कंडीशन यूज़ करने का। थर्ड में अगर मैं यूज़ करूँ, व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन में ये थी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है शुड बी इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो भी है इसकी वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है। ये वाली कंडीशन मैंने यूज़ किया। अब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे लिखी, अब इसके लिए राइट एंड लेफ़्ट अलग अलग नहीं लिखी क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक ही बार फाइंड कर लिया। पहले फैक्टर बना लिया क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो इसके फैक्टर बना लिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। द रिमेनिंग थिंग इज़ अ पॉलिनोमियल। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में जो एफ ऑफ 3 था, ये यहाँ से क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा था कि जब x3 है तो एफ ऑफ x क्या है? a है, तो इट मीन्स एफ ऑफ 3 इज़ a, ठीक। ये आ गया था आपका राइट साइड पे, ठीक। राइट साइड पे हमने a लिखा, तो बाद में ये जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया था दैट वाज 5, सो राइट हैंड साइड इज़ a, सो a इज़ इक्वल टू 5, सो द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट a इज़ 5. I think this is the last example. Yeah, and then we will have some other conditions. Okay, so यहाँ पर आपने दो a किया है कि k and m, find the constant k, यहाँ पर k and m होगा, find a value of the constant k and m because here you have two constants. Okay, so इसमें you have to find the value of k and m. तो इसमें if you see you have two values, 2 पर or -1 पर. Since this function, you will assume that this function is continuous everywhere, so of course it will be continuous at 2 and -1 then. So you have to use the condition of continuity at 2 and -1. जब आप वो condition use करोगे तो you will find this value of k and m. पहले 2 पे देख लेते हैं. Suppose that this function is continuous at 2 because the function, you assume that the function is continuous everywhere. Since you are assuming that the function is continuous at 2, so the limit of that function at 2 will exist. So limit exist करने का मतलब है the right side limit and left side limit are same. So यहाँ पे हमने इसको फोर्सफुली इक्वल किया क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो राइट और लेफ़्ट को यू डू नॉट नीड टू प्रूव दिस, ये हम प्रूफ नहीं कर रहे कि लेफ़्ट और राइट सेम है, यू आर अज्यूमिंग इट दैट दीज आर सेम. तो यहाँ पर आपने यू विल चूज़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज x² + 2 x² + 5 y because this is the right side of 2 and for right side of 2 x greater than 2 is this one, right? And then for less than 2 you will choose this second function because x less than 2 is here. See, the x less than 2 is here, that's why I choose the second function. And then since it's a polynomial, both are polynomial, you will just find its limiting value, you just will replace this 2 instead of x on both sides and then you will get this equation. You didn't find the value of k and m yet, but you got an equation in term of m and k,
we will see that how we will use it later. लेकिन अभी हमने 2 का देखा था, अब हम 1 पे चले जाते हैं, -1 पर. अब -1 पे अगेन assume that the limit the function is continuous at -1. if the function is continuous so limit exist करती है, तो of course the right and left side limit should same, इसे खुद से इक्वल रखा. यहाँ पे हमने राइट साइड वाली -1 का फंक्शन चूज़ किया, यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला चूज़ किया. कैसे चूज़ किया इसको देखते हुए कि -1 लेस देन x का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -1. सो दिस फंक्शन इज़ फॉर राइट साइड ऑफ -1 and this function is for left side of -1 because here we have x less than -1. तो राइट और लेफ्ट के फंक्शन चूज़ किए, उसके बाद सिंस बोथ आर पॉलिनोमियल तो जस्ट आपने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट k is equal to 4. So you found the value of k, but how about the value of m? You already had this equation number 1. Here you will substitute k is equal to 4 and your m will be 9/5. Sorry, 5. This 9 minus 4 will be 5/3. So that will be your value of m, 5/3. Okay, so there are some important notes that the polynomials are continuous everywhere, just like the domain of the polynomial का domain क्या होता था, set of all real numbers. तो continuity में भी वैसा ही है कि polynomials जो होते हैं वो हर जगह continuous होते हैं. For example, if a polynomial is given and it is said to you to find the point at which this polynomial is continuous, so your answer will be set of all real line. So ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन, वो भी हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं जहाँ पर वो डिफाइन होते हैं, यानी अपने डोमेन में रहते हुए वो हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं. रैशनल फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर द डिनोमिनेटर इज़ 0. जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है ना, वहाँ पर बस वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, बाकी हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं. इफ़ यू सी दीज एग्जाम्पल्स, यहाँ पर आप क्विकली देख लो. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये हर जगह कॉन्टीन्यूस है. यहाँ पे आपने देखने हैं वो पॉइंट जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, आपने वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस है. सेकंड फंक्शन रैशनल फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर द डिनोमिनेटर इज 0. इसके आप फैक्टर बना लो, तो डिनोमिनेटर अगर x से मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2x + 1, ये इक्वल टू 0 अगर मैं करूँ, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2. मीन कि दीज टू आर द पॉइंट्स एट विच my denominator is 0, so I have to exclude these 2 points from the real line. रियल लाइन में एक -1/2 को एक्सक्लूड करना है और एक 0 को एक्सक्लूड करना है. सो आई नीड टू टेक दिस पार्ट. सो दिस इज -∞ से -1/2 and then -1/2 is not part of the first interval, and my second interval again will be from -1/2 till 0. -1/2 is not the part of the second interval, and 0 is also not the part of this second interval and also not the third. So इस तरह -1/2 and 0 दोनों से exclude हो जाएंगे नंबर लाइन से. So that is the domain of that rational function. In the third example, if you see, this is a radical function, but in radical function, if you remember in the part of the domain of the function, we said that whenever this index is odd, then the domain is set of all real line. But if this index is a1, like square root, then whatever you have inside that square root, that should be greater than or equal to 0. The same is for this continuity. So since this is odd, so the answer will be set of all real line, so it's continuous at every point. But if you had x minus 8 square root, then this function, for example, if your function was this one, then this function is continuous at all point x greater than or equal to 8, because x minus 8 should be greater than or equal to 0. So the answer in that case would be 8 से लेकर +∞. मतलब ये वाला फंक्शन कहाँ कॉन्टीन्यूस है, 8 से बड़ा, 8 इंक्लूडेड है, ठीक. लेकिन इस केस में सारे नंबर्स हैं, इस केस में 8 से बड़ा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, so you do not have to think about it because it's a polynomial, so it's continuous at every real line. In the next example, यहाँ पे उल्टा है, you have to find the point of discontinuity. मीन कि आपने वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पर ये continuous नहीं है, not continuous, उल्टा बताना है. First example is a polynomial, and you know that polynomial are continuous everywhere. जब हर जगह continuous है, so
डिसकॉन्टीन्यूटी तो है ही नहीं फिर उसमें, तो आंसर होगा नन, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट एट विच दिस पॉलिनोमियल इज़ नॉट कंटिन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस। सेकेंड वन, ये इंडेक्स उसका ऑड है, ऑड के केस में वो हर जगह कॉन्टीन्यूस होता था, तो इसका मतलब इसका आंसर भी नन होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। थर्ड वाले में अभी हमने बताया था कि ये कहाँ कॉन्टीन्यूस था, x ग्रेटर दैन 8 से ग्रेटर के लिए कॉन्टीन्यूस था। अब हमें उल्टा बताना है ना, मतलब ये 8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक दिस इज़ कॉन्टीन्यूस, तो कहाँ कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, जहाँ जो बाकी हिस्सा जो रह गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 8 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 8 अगर मैं रख दूँ यहाँ पर 8 माइनस 8 डैट विल बी 0, 0 पे तो वो कॉन्टीन्यूस है, 0 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, हमने बताना है जहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो 8 से छोटे और 8 खुद नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से 8, और इन अदर वर्ड यू जस्ट हैव टू प्लेस दिस वट एवर यू हैव इनसाइड रेडिकल लेस दैन 0, क्योंकि लेस दैन 0 होगा तो ये डिसकॉन्टीन्यूस होगा, तो वहाँ से x आ जाएगा लेस दैन 8। ओके, एंड देन in the fourth example you will see that the answer will be no. Why? Because this is a rational function, और इस रैशनल फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूटी वहाँ होती है जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो इन दिस एग्जांपल नंबर 4 बिकॉज x squared is a positive number and 4 is a positive number and the sum of two positive number can never be 0, so that's why the answer is none. लेकिन इस एग्जांपल में यस हो सकता है, डिनोमिनेटर कहाँ ज़ीरो होगा, 2 और -2 पर, सो 2 और -2 पर ये डिसकॉन्टीन्यूटी है। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हो। अरे यहाँ पे ये क्यों क्लोज हो गया, वट एवर यू हैव इनसाइड दैट -x -2 दैट शुड बी लेस दैन 0 फॉर डिसकॉन्टीन्यूटी, नेगेटिव होगा तो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, तो उस तरह तो आना चाहिए था x लेस दैन 2 और माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन 2 यहाँ पर क्लोज क्यों हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी तो है, तो इसका मतलब है लेस दैन 0 भी अलाउड नहीं है, यानी डिसकॉन्टीन्यूटी आपको देगा और इक्वल पे भी डिसकॉन्टीन्यूटी देगा इस केस में, क्योंकि नीचे है, यहाँ पे अपना इक्वल भी लूँगी तो उधर भी मसला करेगा। 2 - 2 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड हो गया, तो इस वजह से ये 2 भी इसका पार्ट आ गया। अगर ये चीज़ ऊपर होती फिर इसने क्लोज नहीं होना था 2 ने। ठीक है, आगे जस्ट दिस इज़ द जस्ट लास्ट टॉपिक फॉर डिसकॉन्टीन्यूटी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एक्सरसाइज में नहीं होंगे आपके क्वेश्चन, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस क्विज या एग्ज़ाम में आएंगे ये पिछले पार्ट की तरह होंगे, जो आपने एक पॉइंट पे निकालना होगा, नॉट ऑन एन इंटरवल। ये है कि पूरे इंटरवल के ऊपर आप ओके, सो पूरे इंटरवल में जब आपने देखना है कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, तो उसके लिए आपने पहले ओपन इंटरवल में चेक करना है। ठीक, ओपन इंटरवल में आपने देखना है अगर फंक्शन फॉर एग्जांपल ग्राफ के थ्रू गिवन है तो कॉन्टीन्यूटी आप इनफॉर्मली कह सकते हो, अगर आप कोई पेन को उठाए बगैर कोई ग्राफ ड्रा कर लो, पेन को उठाए बगैर, और उसमें कोई ब्रेकेज ना आए, सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस। लेकिन जो ही आपको पेन को उठा के कुछ ड्रा करना पड़ रहा है तो आपको अगर यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस हो गया ग्राफ। ठीक, तो आपने उस ओपन इंटरवल में पहले देखना है ग्राफ कहीं डिसकॉन्टीन्यूस तो नहीं है, पहले ओपन इंटरवल में चेक करना है, फिर बाउंड्रीज़ में चेक करना है। बाउंड्रीज़ में कि ये ए बी, अगर हमने ए बी क्लोज इंटरवल में चेक करना है, सो यू हैव टू चेक दिस बाउंड्रीज। लिमिट चेक करनी है, आपने देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू एट जो x अप्रोचेस b इज सेम एज इट्स लिमिटिंग एग्जैक्ट वैल्यू एट b और नॉट। एंड लिमिटिंग वैल्यू भी सिर्फ एक साइड की चेक करनी है, क्योंकि b के राइट साइड पे देयर इज़ नो ग्राफ बिकॉज ग्राफ एंड्स टिल हियर। सो इसका मतलब है b का आपने लेफ्ट साइड वाला लिमिट लेना है और वो होनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट b, और a का कौन सा, राइट साइड, क्योंकि देयर इज़ नो ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ a। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x when x approaches to a from its right side should be equal to exact value of f of f a at a, and similarly for f। अगर ये है तो आप कह सकते हो कि your graph is continuous in the closed interval। let's do with an example से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये लास्ट वाली एग्जाम्पल है, if you see the third example, आपने चेक करना है कि ये -1 के 1 के दरमियान कॉन्टीन्यूस है कि नहीं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में चेक करने के लिए पहले देखना है ओपन इंटरवल, मीन के इसके दरमियान -1 से 1 के दरमियान कहीं ग्राफ में ब्रेक तो नहीं है। इफ़ यू सी द ग्राफ हैज़ अ ब्रेक एट 0 पे ग्राफ ब्रेक हुआ है,
तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इट इज सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ओपन इंटरवल में वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, वो ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि ज़ीरो पे वो डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक, तो आपको अगेन नो दिस ग्राफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट दिस क्लोज इंटरवल। इफ़ यू सी द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू इज़ इट कॉन्टीन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल और नॉट, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ है, फर्स्ट यू विल चेक ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में अगर आप देखो ग्राफ कॉन्टीन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है ग्राफ में। ठीक, इस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल तो कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल के ऊपर। अब हमने बाउंड्रीज़ पे चेक करनी है। बाउंड्रीज़ पे क्या चेक करते थे, लिमिट देखते थे एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है 1 पे चेक करना है कि 1 की, और 1 x की जगह जब 1 पुट करोगे तो y भी 1 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1 है। और लिमिटिंग वैल्यू देखना है 1 है कि नहीं। लिमिटिंग वैल्यू विच साइड, राइट और लेफ्ट और बोथ। in this case you have to check only the left side. So limit of this function mean के absolute value of x when x approaches to 1 from its left side, that should be equal to its exact value. exact value भी देखोगे 1 है तो limiting value भी 1 है, क्योंकि limiting value में ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, 1 को जा रहा है। ठीक, तो ये तो ठीक है। सिमिलरली सेकेंड बाउंड्री -1 पे चेक करनी है। सो अब -1 के कौन से साइड पे, राइट या लेफ्ट। -1 का लेफ्ट, क्योंकि देर इज़ नो पार्ट ऑन दी, सॉरी राइट, देर इज़ नो पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -1। सो -1 का राइट साइड पे आना है, तो ये इक्वल होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ -1 पे। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों सेम है। तो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/x, इफ़ आई से द इंटरवल दिस 1 to पे तो क्लियरली नज़र आ रहा है इट्स कॉन्टीन्यूस, क्योंकि 1 to के दरमियान कोई ब्रेक भी नहीं है। फिर 2 पे उसी तरह अगर आप निकालो, इसकी लेफ़्ट लिमिट और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, और इस 1 की राइट लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है 1 to पे वो कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर मैं इंटरवल आपको 0-1 देती हूँ तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है 0-1 में। क्यों? ओपन इंटरवल में तो चलो वो कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि 0-1 के दरमियान कहीं ब्रेक नहीं है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो तो कॉन्टीन्यूस है। बाउंड्री एक 1 है और एक 0 है। 1 पे भी कोई मसला नहीं है 1 की बाउंड्री में, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो भी है, एक्स अप्रोचेज 1 को किस साइड से करना होता है, लेफ्ट साइड से, तो वो इक्वल टू एफ ऑफ 1 ही है, क्योंकि लिमिट पे ये ग्राफ लोगे जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दोनों यही है, 1 है, दोनों 1 है, तो 1 पे भी कोई मसला नहीं कर रहा। 0 वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे मसला कर रहा है। 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 पे देर इज़ नो वैल्यू ऑफ द ग्राफ को तो कहीं टच नहीं कर रहा 0 पे। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो उसको लिमिटिंग वैल्यू के साथ हम कैसे कंपेयर करें, और लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं है वैसे भी इस केस में, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लिमिट तो नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है ये 0-1 क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। आई होप इट्स